So let us start the meeting. Good afternoon to everyone. Namaskaram. So today this meeting is being held about the discussion of the topic online examinations of the first year MBBS students in VM Medical College currently. And this could be shared to the people from other colleges as well. I found this topic important, crucial to be discussed. The main reason is that currently KY is doing a lot of work in different branches and many first year students are volunteering. But on being asked for the reluctance to reply, answer or volunteer currently, I was told and the reasons were given as कि हमारा एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, हमको स्ट्रेस है या थोड़ा टेंशन है या हम पढ़ाई कर रहे हैं एंड ऑल दिस. So I was a bit astonished to know all this. The reason I was astonished is कि open book test में कभी कोई पढ़ाई करता है क्या? First point. And if yes, then does it take so much of time that we can't even reply with single message or just cannot give a thumbs up or which made me. We will discuss this all in two halves. The first half will be I will ask you and I will explain to you how could you study for your online exam. And the second half is how can you volunteer and how can you do things apart from your studies as well. So the first half is how do you study for your exam and how do you do it for the online session. So even if this is observed by any faculty or professor, maybe they too will agree with this because there's nothing that we are speaking incorrect in this discussion. So if you see, online exam hai, this is one of the biggest boon for short-term aims, short-term study, short-term goals. But for long terms, it may not be much useful if we don't study in a proper way. जैसे लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या हमारा बैच है जो लास्ट ईयर के सारे एमबीबीएस के बैचेस हैं, all their exams were conducted online. And last time lockdown was a new thing. People who could afford, who could stay at home, who can sit and eat, they had enjoyed all the lockdown. And how they finished or how the 9 and 10 months passed away, no one could really figure out. And at that time, maybe the mental stress was not so much as compared to what it is in today's scenario. So as compared to this lockdown, the last lockdown was far more joyous, jovial, and fun making. People had done new things. Online modes were coming up, and people were trying to find out ways, make new things, and how the first lockdown went. This is all about. But in this time, the condition is severe. Infection is spread more vigorously, and many of our relatives, friends, family friends, maybe families, they're involved, and to some extent even a lot of MBBS students are also involved. So this lockdown is not that much jovial, that it's not much entertaining as compared to the last one. So last time लोगों का मजा करने में लॉकडाउन ज्यादा चला गया था, and so they could not study a lot. तो लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्जाम जब भी आता है तो आप बुक्स लेके बैठते हो, फ्रेंड्स का व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन करके बैठते हो और कोई एक आंसर लिख के भेज देता है, बाकी सब उसको छाप लेते हैं. और फर्स्ट टाइम था तो इसीलिए जो फैकल्टी का साइड है या इंस्टीट्यूशन का साइड है उन्होंने भी थोड़ी दया दिखाई थी. एंड दे वर आल्सो मर्सीफुल एंड 3 घंटे के जगह 4 घंटे दिया, 4 घंटे के जगह 5 घंटे दिया. And ये सब नया था तो students also played a lot of plagiarism kind of things. And network नहीं है sir, मेरे गांव में range ही नहीं है. It could be the genuine problem, no one denies.
but then others too made a foul play of this and made a mischief of this and took disadvantage of, they took extra advantage of this. And this extra advantage turned to be a disadvantage to them in the final university exam that was happening at the offline level, because we had not practiced writing papers offline without seeing, and that turned to be a big problem. So time being, for without getting tensed, you can simply refer your book, refer your questions, answers to write your answers. But for a long run, it doesn't mean that you don't study and just open the books during the exam, or या फिर friend ने answer भेजा, लिख लिया, खत्म कर दिया. It should not be like that. और ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि एग्जाम आ गया, एग्जाम ये पढ़ो वो पढ़ो, इतना ऐसा सब. देखो, keep things simple. As we already discussed in the last couple of meetings, कि your work or what you have in your hands is to work hard. Result is not in your hands. So if the results are not in our hands, definitely anxiety for the result has no place. जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में चिंता क्यों करें? We are fearing. Yesterday, I had asked 3-4 questions to the volunteers who had attended the meeting part 2 of KY volunteers meeting. And there were just 3 members, and I asked them a few questions. The questions were like, what does man fear the most? So the expected answer or the most, the universal answer is death. But then someone wrote, two students had written that it is not death, it is failure. So if we fear failure, we need to understand, if we fear the failure, we will never grow. We will never attempt for the second time. We have our poster as well, that it is our attempt and it is how we face the failure which decides the next, success of one's life. So failure aega ya success aega, this is out of question. Imagining the outcome is definitely your part, but expecting the outcome is highly dangerous, and that gets you only frustration. So moral of the story is, doing things, doing the karma, working hard is just in your hands, and that is very simple. Otherwise, success would have been the choice. No one would have come across failure. Failure is in fact the stepping stones towards success, as we all know this. And there's no one, even God, when he came in human forms, he had to face problems in his life, but he was always jovial, happy. You see, there are so many saints who have faced a lot of bad times, but still they are the ones whose stories are engraved in the history. And that is why failure is a part and parcel of life. We must never think about failure or success in terms as a, but just work hard and be relaxed. So currently, how do you study is the main question. So there is a simple tactic which most of us follow, and is quite fruitful, and it may be useful to you as well, I believe. So most of the times, what do we do? There's a question bank, right? Maybe it is unique, or maybe Bhalani, or anything like that. Now people will say, there are both kinds of people who have been talking to me about this since last 3.5 years. Some have a view that Rohit Tapadia, maybe he doesn't study much and he is doing IMP and he is passing. So they will say, ये IMP करके पास हो गए, तो IMP के बाहर का अगर क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास OPD में केस आएगा, तो आप क्या करोगे? And there are other kinds of people who say, Arey, you are intelligent, we know you can manage everything, and you are asking us to do IMPs, how are we going to do it in future? और सब गड़बड़ हो जाएगा. ऐसा नहीं है. Those IMP questions are not just put up into the list just because they are asked in the university exam as such. University exam में केवल वो question पूछे जाते हैं, इसीलिए वो IMP है, ऐसा नहीं है. वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते क्योंकि उसके पीछे रीजन है,
और इसीलिए वो IMP क्वेश्चन। ध्यान में आई बात? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी एनाटॉमी, and in anatomy you have the axillary artery, which is a very important LAQ, or you have the brachial plexus, which is an important LAQ, or you have the cubital fossa, which is an important LAQ, or you have the anatomical snuff box, which is a small SAQ. There are so many questions, like you have the radial nerve as a LAQ, the medial nerve as median nerve as a LAQ. So में आप सीख रहे हो तो इतना डिटेल में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बस कल आपको कोई अगर ऑपरेट करने के लिए बोले और लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोले तो यू शुड नो ईच एंड एवरी आर्टरी, स्मॉल वेन एंड नर्व, और मैं इतना किताब को रट लिया, यू विल जस्ट एंड अप विथ फ्रस्ट्रेशन इफ यू गो दिस वे। सी, दिस इज नॉट 12th स्टैंडर्ड और नीट एग्जामिनेशन की आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन रटना है, हर एक लाइन को इट इज ए एमसीक्यू और क्वेश्चन और लाइक दैट। नाउ दैट फेज हैज गॉन। Try to be more application based. Try to see it with some application or implication in your academic career, in your clinical subjects, or as the applied part. So आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसका कुछ applied होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी वही क्वेश्चंस पूछती है frequently जो केसेस डे टू डे लाइफ में हम बहुत कॉमनली ओपीडी बेसिस पे या क्लिनिक्स में देखते हैं। तो वो कोई ऐसे उनको अच्छा लगा क्वेश्चन उठा लिया, रेडियल नर्व का LAQ लिखो ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं है। वो सैटरडे नर्व पाल्सी किसके लिए बोलते हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया में दारूडे बहुत है, देसी पियो या आप ब्रांडेड पियो, और द वन हु हैज ड्रंक ही विल फॉल ऑन द चेयर लाइक दिस, एंड यहाँ पे उसका कहाँ पे, on the back of the middle on the back of the upper arm, here there's a radial groove, and there this radial nerve gets compressed when वो दारू पी के अगर ऐसा बैठता है तो there the radial nerve gets compressed, and that is why he has the Saturday nerve palsy. और सैटरडे क्यों? क्योंकि संडे छुट्टी है, इसीलिए सैटरडे को पी के वो पड़ा रहता है। ये सब के पीछे रीजन है। इफ यू गो टू मेडिसिन वार्ड, out of 40 patients, 15 to 20 patients are with a history of alcohol and complications. Fatty liver है, liver का liver cirrhosis हो गया है, और if you ask them for the history of alcohol, they will say मैं 20 साल से दारू पीता हूँ, मैं 35 years से दारू पीता हूँ। This is the typical history what you get. That is why liver cirrhosis is so important. That is why this Saturday nerve palsy is so important, and that is why radial nerve is so important. So there is a reason behind every IMP that is being put in the exam or asked in the exam. And you people being the students of the revised curriculum of NMC, you're definitely going to have a vertical and horizontal integration of subjects, and the questions will definitely be of application kind. So for that, you can refer the question paper of the university that the last batch had. And so that will be of great help. And you need to more focus on the applied aspect of any subject that you are studying. May it be anatomy, may it be physiology, or may it be biochemistry. Getting my point? So this is very crucial. So the basic step. Now, by this all this discussion till now, I have told you that you must have faith in the IMP list, because there is a reason to follow. It is not possible for an individual, for a normal, ordinary individual to go through the whole text. Even if he goes through the whole text, he will definitely not remember each and every point. One of our, tutors in the physiology department who is currently doing MD radiology, that fellow used to tell us, he was a very brilliant faculty, and he used to tell us, if you're reading 100 lines in 2 hours, 2 hours is 120 minutes. So in 120 minutes, if you are reading 100 lines, how many can you recall? How much can you reproduce in terms of recalling? That is more important. 100 line read karne ke baad, if you are able to remember only 10 or 15 lines, that is useless. You have wasted your time in that terms. When it comes to exam preparation, I'm not talking about only knowledge. Exam and knowledge have nothing to do with each other, to be very honest. There was one IS officer in Solapur some time back, the collector of Solapur. He used to say, see, he was an IAS, but still he used to say, exam and knowledge have no relation.
व्हाई? बिकॉज मतलब थोड़ा थोड़ा रहेगा बट नॉट एग्जैक्टली। नॉलेज अगर आपको गेन करना है तो यू नीड टू रीड रेलेंटलेसली। और एग्जाम आ गए, एग्जाम हो गया, मैं रीड कर रहा हूँ, मेरे को नॉलेज आ रहा है, दिस डजंट हैपन। उसके लिए आपको हमेशा भूख चाहिए। यू शुड बी थर्स्टी ऑफ नॉलेज, हंग्री ऑफ नॉलेज। एंड मतलब वो ऐसा नहीं होता खाली एग्जाम हॉलीडे सीजन। ऑलरेडी हमने पोस्टर डाला है, वी विल डिस्कस इट एज अ सब्सिक्वेंट टॉपिक इन दिस मीटिंग। बट एग्जाम हॉलीडे साइकिल में नॉलेज गेन नहीं होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, इरिस्पेक्टिव ऑफ हॉलीडे, आप रीड करना चाहिए, आपको नॉलेज की भूख होनी चाहिए, देन ओनली यू विल गेट नॉलेज। एंड एग्जाम के लिए फिक्स पैटर्न रहता है, फिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, 10 में से 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, यू नीड टू रीड, मग अप, गो एंड वॉमिट देयर। दिस इज हाउ एग्जाम हैपेंस। एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम देखो, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन, 15 इयर्स के क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज दोज आर द मोस्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड they are the most relevant questions that you are going to see around you as application. So now the first step towards this preparation is simply you open that list of IMPs and you mark all those questions in your textbook, and then you just see kahan pe kya cheez hai, what kind of question has been asked, what could be the possible questions they would ask. आप पहले ऐसे मत करो मैं सब रीड कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज उन्होंने नी जॉइंट का टॉपिक लिया या हिप जॉइंट का टॉपिक लिया, तो दे विल स्टार्ट रीडिंग, अंडरलाइनिंग, और वो हाइलाइटर यूज करते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, सब करते हैं पूरा डिटेल में। उसके चक्कर में क्या होता है, दे कैन नॉट कंप्लीट द होल सिलेबस, एंड दैट इज वाई मेरा ये एलएक्यू तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, और मेरा दूसरा एलएक्यू मेरे को कुछ आता ही नहीं। आप कितना भी अच्छा एलएक्यू लिखो, आपको 10 पे से वो 8, 8.5 नंबर ही देने वाला है। आप बहुत ज्यादा गंदा लिखोगे तो वो आपको 3-4 मार्क्स देगा, लेकिन आप ओके ओके एलएक्यू लिखोगे तो ही विल डेफिनेटली गिव यू 5 और 6 मार्क्स और 6.5 मार्क्स। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू पास। Gaining knowledge is different, passing in the exam is different. These two things cannot be interlinked always. Fix this in your mind. आप एग्जाम दे रहे हो पास होने की इच्छा से, ठीक है ना? तो जस्ट व्हाट इज द पर्पस कि मेरे को एक स्टेप आगे जाना है, ओके, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट रियलाइज दैट यू वर्क फॉर नॉलेज। हमारे यहाँ पे कैसा है, एग्जाम है तब देखेंगे, दिस इज द वर्स्ट मेंटालिटी एवर, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू डर्टी डॉक्टर्स, एंड वी आर दी वंस, फिर हम मार खाने वाले वही हम डॉक्टर है, बिकॉज नॉलेज नहीं है, खाली एग्जाम के लिए पास हुआ है। बट एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी is a different story, knowledge is a different story. I repeat again. So in this case, how do you prepare? And as I already told you, those IMP questions are definitely, they are related to the application. अभी अब नी जॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या हिप जॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतने सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हिप डिसलोकेशन हो गया, नी डिसलोकेशन हो गया, या नी का ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, तो ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए पहले ये तो मालूम चाहिए कि उसमें कितने नॉर्मल 12 कार्टिलेज होते हैं, 13 वर्सा होता है, वो सब आपको लिस्ट मालूम चाहिए, कहाँ पे कौन सा कार्टिलेज है, आप किसको निकालोगे, किसको डालोगे, यू नीड टू नो दी बेसिक। हिप जॉइंट अगर आपको मालूम चाहिए, किसी का डिसलोकेशन हो गया, पैर टूट गया, तो फीमर ऑफ हेड ऑफ फीमर टूटा है क्या, नेक में फ्रैक्चर आया है क्या, तो नॉर्मल एनाटॉमी मालूम चाहिए। अगर वहां पे फ्रैक्चर हुआ है तो वहां पे कौन सा नर्व है जिसको इंजुरी हो सकती है, इसीलिए अगर वो नर्व का इंजुरी हो गया है तो रिस्पेक्ट टू पैरालिसिस हो जाएगा वो मसल का या जॉइंट का। वहां पे कोई ब्लड वेसल है, इंपॉर्टेंट आर्टरी वेन है, उसको अगर डैमेज हुआ है तो ब्लड लॉस हो सकता है। पेशेंट कैन, इफ इट इज अ मेजर आर्टरी, पेशेंट कैन अंडरगो हाइपोवोलेमिक शॉक, और अदरवाइज व्हाट कैन हैपन, अगर कोई माइनर वेसल्स है, वहां पे इंजुरी हो गया है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उसकी वजह से क्या होएगा, वो टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा। ये कॉमन पॉइंट्स है, तो आपको वो मुद्दे को समझना है, इमेजिन करना है कि मेरे सामने यहाँ पे फीमर है, उसका इधर हेड है, इधर नेक है, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, इधर इंजुरी हुआ तो ये होएगा, उधर इंजुरी, वर्चुअल डिसेक्शन है, इतने सारे ऐप है आपके पास, नेटर का एटलस है। तो इस तरीके से पढ़ने के लिए एग्जाम के टाइम पे पढ़ना नहीं है, ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ ये सब पढ़ना है ऑल अराउंड द ईयर। पूरा साल भर जब आप कोई टॉपिक लेते हो, रोज का एक ही टॉपिक लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
go according to the IMP all around the year, and at that time focus in this way, understand and learn the topic in this way in detail with application basis. Now during the examination questions mark किया, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन में सब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, किसका कितना आंसर है. अगर ये मेरे को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो मैंने उसका क्या आंसर लिखना है. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल टेक्स्ट बुक. अगर आप देख के लिखना भी एक कला है. इट इज नॉट इजी, नॉट वेरी सिंपल टू सी एंड राइट. जब आपके सामने टेक्स्ट बुक होता है तो ऐसा होता है मैं क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं. आई बात ध्यान में. सो एट द टाइम व्हेन यू आर नाउ ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम व्हेन यू आर सीइंग द क्वेश्चंस, अच्छा पॉपुलेटिव फोसा क्वेश्चन पूछा है, क्यूबाइटल फोसा क्वेश्चन पूछा है, मैं क्या लिखूंगा. बाउंड्रीज, मसल्स मेकिंग द बाउंड्रीज, रूफ क्या है उसका, ये क्या है, बेस क्या है, उसके बाद में उसका कंटेंट क्या है, उसका अप्लाइड एनाटॉमी क्या है. चैप्टर इज ओवर, आंसर इज ओवर. उसमें क्या पॉइंट्स लिखना है टिक करके रखो. ज्यादा उसको डीप में पढ़ के रटने की, याद रखने की कोशिश मत करो. दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर exams currently, even if offline or online, whatever may be the mode of exam, this is not at all useful during. ये काम 2 महीने पहले करना चाहिए जब टाइम पास किया. अच्छा अभी वो टाइम चला गया है तो उसके ऊपर ज्यादा टेंशन मत लो. ऑनलाइन एग्जाम है तो उसका आप एडवांटेज लो. जो आंसर क्या लिखना है, इफ दिस क्वेश्चन अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ मी इन माय एग्जाम, what points am I supposed to write? Try to study, try to read, try to learn in this way. That will be more useful to you in terms of covering the portion, in terms of reducing the stress, and in terms of writing the answers. So this is how you are going to study. Now to be talking about more particularly about each subject. Anatomy, as I already told, it is full of diagrams. अभी आपको कोई चीज एनाटॉमी में रटनी ही नहीं है, याद करनी ही नहीं. अगर आप एनाटॉमी में कुछ रट रहे हो, याद कर रहे हो, दिस इज अटर फुलिशनेस. Whatever you want to remember, put it in diagrams. If it is not in the diagram, it means it's not significant. लेकिन बीडीसी में सारे डायग्राम्स हैं ऐसा भी नहीं है, विश्राम सिंह में सारे डायग्राम्स हैं ऐसा भी नहीं है. तो यू ऑलवेज नीड टू रेफर है एटलास. एटलास में सब एकदम हाईफाई डायग्राम है. नेटर को कुछ काम नहीं था, उसने गजब के ड्राइंग्स बनाए. हमारे लिए उतना बनाना पॉसिबल नहीं है. नॉट एवरी स्टूडेंट इज एन आर्टिस्ट. तो मेक देम सिंप्लीफाइड, मेक दोज डायग्राम्स लाइन डायग्राम्स में उसको कन्वर्ट करो और आप उसको प्रैक्टिस करो. तो सिंपली जो आप डायग्राम में बनाते हो उसी को आपको नीचे एन्यूमरेट करना है, लिखना है. जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल आपको आंसर्स बताता हूँ. सपोज आपको आंसर आया कि क्यूबाइटल फोसा, तो आप क्या करोगे. क्यूबाइटल फोसा हेडलाइन दिया, फिर आप उसके लिखोगे बाउंड्रीज. पहले लिखोगे शेप, तो उसका क्या शेप है, ऐसा राइट एंगल का इन्वर्टेड ट्रायंगल है. फिर उसके बाद उसमें आप लिखोगे बाउंड्रीज. फिर बाउंड्रीज में लैटरल में ये मसल है और सुपीरियर साइड में ये है, ऐसा है, ये सब बाउंड्रीज. जस्ट एन्यूमरेट, ड्रॉ द डायग्राम, एन्यूमरेट. शेप ड्रॉ करने का इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल का, और लिखने का इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल शेप. फिर उसका पॉइंट, वो उसका एपेक्स कहाँ पे है, बेस कहाँ पे है, वो लिख देने का. फिर लिखने का बाउंड्रीज, बाउंड्रीज में लिख के बाउंड्रीज का डायग्राम बनाने का, और जो बाउंड्रीज में डायग्राम कौन सा मसल किधर है वो बनाया उसको ही लिखने का कि सुपीरियरली ये है, इंफीरियरली अपेक्स ये है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, या लैटरल मीडियल जो भी है वो सब आप बाउंड्रीज एन्यूमरेट करने का, साइड और उसका बाउंड्री का नाम, मसल का नाम. फिर उसमें सुपरफिशियल जो रूफ है उसके लिए डायग्राम आएगा, उसके बेस के लिए डायग्राम आएगा. जो आप डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं वही आपको लिख रहे हैं. फिर उसके अंदर कंटेंट का डायग्राम आएगा. कंटेंट आप जो भी लिख रहे हो वो आप उसके बारे में दो चार सेंटेंस जो सिग्निफिकेंट है, उसका पोजीशन क्या है, मीडियल टू लैटरल, लैटरल टू मीडियल जो भी है वो लिख दिया, और अप्लाइड एनाटॉमी लिख लिया. फॉर 5 मार्क्स इफ यू आर ड्राइंग 4 डायग्राम्स, 5 डायग्राम, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. आंखें बंद करके आपका डायग्राम देखे आपको एग्जामिनर 5 में से 4 मार्क्स, 3.5, 4, 4.5 मार्क्स आराम से देगा, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंटेशन. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू एनाटॉमी फॉर एवरी डैम आंसर. सपोज अगर पूरा क्वेश्चन है अप्लाइड एनाटॉमी का, फॉर एग्जांपल ऐसे क्यों आता है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, मैमरी ग्लैंड, या अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ आर्चेस ऑफ फुट, या अब्डोमेन आपको हुआ नहीं है लेकिन अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ गॉल ब्लैडर, एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपैरेटस, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल, या अर्ब्स पैरालिसिस का ऐसे क्यों आता है. तो उसमें डायग्राम क्या ड्रॉ करोगे, उसमें डायग्राम नॉर्मल ब्रेकियल प्लेक्सस का ड्रॉ करने का, जहाँ पे अर्ब्स पॉइंट है, जहाँ पे इंजुरी होता है,
और फिर उसके सारे पॉइंट्स फीचर्स क्या क्या है, विच मूवमेंट्स आर नॉर्मली पॉसिबल, देन विच मूवमेंट्स आर लॉस्ट, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कहाँ पे इंजुरी होने की वजह से कौन सा नर्व डैमेज होता है और उसकी वजह से क्या क्या लॉस्ट होता है, कौन से मसल का पैरालिसिस होता है, दैट्स इट. So this is how you are going to write for anatomy. When it comes to physiology, it's all about processes. Body में कौन सा कैसा होता है, ठीक है ना. तो it should be in flow chart. जैसे आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन गोज एट द रेस्पिरेटरी अल्वियोलाई लेवल में फिर अल्वियोला के 6 मेम्ब्रेन्स है, फिर वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हाउ दे पास थ्रू इट, देन 6 मेम्ब्रेन्स जो लेयर्स है उसको एन्यूमरेट किया, सीक्वेंस उसका लिखा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, व्हाटएवर, and then how it is going into the blood, then what is the उसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन का पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, कर्व है, जो आंसर है उस हिसाब से लिखना है. अच्छा, वो जो लेयर्स है उसमें से व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफ्यूजन, क्या प्रेशर है, किधर कम है किधर ज्यादा है, ऐसे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लिखना है. मतलब आपको वो जो प्रोसेस है उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और उसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको आपको एन्यूमरेट करना है. और अप्लाइड फिजियोलॉजी का है, जैसे आपका नर्व मसल फिजियोलॉजी में आपको सिखाया होगा माइस्थेनिया ग्रेविस, तो वही है कि उसको कितने पॉपुलेशन में देखा जाता है, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम होता कहाँ पे है, नर्व मसल जंक्शन पे होता है तो उसका डायग्राम निकालने का, नॉर्मली कैसा न्यूरोट्रांसमीटर जाता है, फिर माइस्थेनिया ग्रेविस होने के बाद कैसा नहीं जाता है, और फिर उसको ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, ये तीनों का डायग्राम ड्रॉ करने का. उसके बाद में क्या प्रॉब्लम, इसको पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या रहता है, वो 1 2 3 एन्यूमरेट कर देने का, और व्हाट इज द पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल वो लिख देने का. उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे अमिताभ बच्चन सफर्स फ्रॉम माइस्थेनिया ग्रेविस, सो ही is a personality, famous personality, what you can just write for fun or just for extra point. Examiner को भी ऐसा लगता है he has general knowledge about the subject, तो ऐसे सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो. अभी एक्शन पोटेंशियल कैसा जनरेट होता है, तो एट मतलब हाँ एट क्या बोलते हैं, एट रेस्ट एक्शन, वो नर्व आपके नर्व का जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, कौन से आयंस कहाँ पे है, फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, कैसे वो डेवलप होता है, स्टिमुलाई को कैसा रेस्पॉन्ड करता है, आयंस कैसे अंदर बाहर होते हैं पोटेशियम और सोडियम का, ऐसे सब डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ फिजियोलॉजी यू कैन राइट. अबाउट biochemistry, most of the part is cycles except for the chemistry of carbohydrates और ये तुम्हारा बाकी सब मेटाबॉलिज्म और ये सब में क्या है, साइकिल्स है. तो आपको साइकिल्स या वो जो फ्लो चार्ट्स है कि भाई कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो भी है, माना कैटा एंड एनाबॉलिज्म कंबाइनिंगली आर नोन एज मेटाबॉलिज्म. तो हाउ डू यू राइट देम, इट इज इन फ्लो चार्ट्स, वेरी सिंपल. वो फ्लो चार्ट्स को ध्यान में रखना है, you need not draw all the structure. और मेन है कि उसका अप्लाइड क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगा. तो as I was discussing about biochemistry, and because of this meeting time limitation it ended, so continuing about biochemistry. So biochemistry, it is all about science again. और उसमें मेन है कि ब्लड लेवल में ये कम हो गया है, ये ज्यादा हो गया है, ये न्यूट्रिएंट, ये ये विटामिन है, माइक्रो मिनरल्स है, है. प्लीज शट ऑफ योर माइक इफ एनीवन बैकग्राउंड में से आवाज आ रहा है, काइंड रिक्वेस्ट. ये विजय कौन है, उसका माइक चालू है, काइंड रिक्वेस्ट प्लीज. साइली का भी माइक चालू है, प्लीज. यस. So this is how it is happening. I mean, this is how we have to prepare for biochemistry. And never fear for exam. Exam is part and parcel of life. So this was the first half of the discussion that I wanted to make. Second half of discussion, I will now continue. And whatever are your questions, maybe subjective, related to the subject, not related to subject, you can ask me at the end of this discussion. So coming to the second half, which is more crucial from my side in the sense, me as a third person viewer, as an audience, or as a pursuer from you all about this, whatever comments have been made or whatever replies I have been receiving.
कि सर एग्जाम है, पहली बात तो ऑनलाइन एग्जाम है, तो आपको अभी टेंशन लेके तो कुछ मतलब कुछ मिलना ही नहीं। आप टेंशन लो नहीं लो, आप पेपर अच्छे से ही लिखने वाले, दिस इज डैम श्योर, क्योंकि आपके फ्रेंड्स कभी आपको डूबने नहीं देंगे, चिंता मत। तो ये सारी बात है। तो दिस इज अबाउट द एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमको ऑनलाइन एग्जाम की वजह से टाइम नहीं है, तो मेरे सिंपल क्वेश्चन है जो 3 इडियट्स में वो प्रोफेसर ने वो स्टूडेंट को पूछा था कि आप खाना छोड़ रहे नहीं, आप नहाना छोड़ रहे नहीं, आप चैटिंग छोड़ रहे नहीं, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना छोड़ रहे नहीं, इफ एवरीथिंग कैन गो ऑन, then why purpose of life cannot be served in this lockdown along with studies? जो लोग ये बोलते हैं, again I repeat, I had been talking about this in the last meeting also, again I repeat कि जो लोग ये बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, they are the people with lots of time, क्योंकि we find time for the things we want to do। ये पक्का है। आईपीएल का मैच अगर किसी को देखना है, किसी को पसंद है, तो he will find time at any cost। फिर उसके घर में भी अगर कोई एडमिट है तो वो उधर बैठे बैठे उसके पेशेंट के बाजू में मूवी चालू, ये तुम्हारा हॉटस्टार चालू करके मैच देखेगा। दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। इट इज हार्श इनफ टू स्पीक ऑल दिस, बट इट इज द ट्रूथ। वी आर सो मच, we as a generation are so much obsessed to all these materialistic things that there is no way out to it. And if we don't change ourselves right now, if we don't modify ourselves right now, probably we will have hard times in the near future to come as a profession and as a professional and in life as well. So it's high time we must realize that why are we here on this planet. Each one of you need to ask a simple question: why am I here on this planet? Why am I born? What is the purpose? ये एग्जाम, छुट्टी, लॉकडाउन, मजे करना, घर में कुछ बना के खाना, दोस्तों से वीडियो कॉलिंग करना, दिस इज ऑल व्हाट इज रियली लेस इंपॉर्टेंट, really less important. You need to realize why you are here. This is more important. और ये चीज बहुत पहले मैंने एनालाइज की थी, इसीलिए हमारे वॉलेंटियर्स वाले ग्रुप पे हमने पोस्टर डाला था, आउट ऑफ द एग्जाम हॉलीडे साइकिल, and this was the sole purpose why we asked each one of you to put your views on the same, what you think about it. Getting me? This was the sole reason. So, but most of them did not realize it. Most of them did not answer it. Most of them did not reply with a video for it. And maybe because of their ignorance, they wasted their 25 days of lockdown. With a couple of meetings, when we tried to interact with you people, it was noticed that none of them had a significant answer, that they learned something in these 25 days. This is not to offend you. This is not to show aap kuch nahi kar rahe ho, aisa. Not all this. This is not the point of view. Please don't misunderstand. The point of view is what significant have we done in the last 25 days. If we analyze, probably if we are not getting any scientific answer, if we are not getting any answer satisfactory, significant, then it is a important question, crucial point on which we must ponder and think. We need not take life for granted. If we take it for granted, you are seeing the results what are happening today. We were trying to put everything into our hands, everything in our approach, everything in our reach, everything in our control. What has happened? The nature is controlling us today. And today we are jailed inside our houses for no reason. You and me cannot do anything for that. We try to dirty this nature by putting up, dumping plastic. Today now we are in the plastic PP kit. The person who is suffering from COVID and who has died is put up into a polythene packed there and then taken to the incinerator and burned. This is the scene.
Being medicos, we are supposed to understand this condition, realize the graveness of the situation, but we are not. हम तो अभी फर्स्ट ईयर में, हमको क्या करना है? हम थोड़ी पेशेंट को ट्रीट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है. We are already into this field. We are supposed to learn the ethics, values, morals, principles. Education of this type we must learn. We must learn the education of this type. What we are expected to do 5 years down the line, we must know. We must know as a medico. अरे लेमैन को हॉस्पिटल के चक्कर काट के उसको पता चल गया, रेमडेसिविर का इंजेक्शन देते, टोसिलिजुमैब का इंजेक्शन देते, फैबिफ्लू के टैबलेट्स देते. लेमैन को अगर ये बातें पता है तो वी बीइंग अ मेडिको हमको तो मालूम ही चाहिए. क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो ऊपर आए और is it a question or they are talking on their own? As I already told you, whatever are your questions, I request you to please ask your questions in the end. So these are some crucial points we must realize. We are not realizing why, because our financial condition is good. हमको 2 टाइम का नहीं 4 टाइम का खाने को मिलता है. अच्छे से आईपीएल 42 इंच के टीवी पे, बड़े सारे 56 इंच के टीवी पे हम आईपीएल देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, पीसी के ऊपर फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, एसी में सो रहे हैं. वी आर नॉट रियलाइजिंग because our basic needs have been completed by our parents. You can just imagine what is the condition of those people who cannot afford this. And if we are saying, or if हमारा understanding अगर ऐसा है कि it is their problem, उनका वो देखेंगे, उनका वो condition manage करेंगे, तो this is the biggest misunderstanding you are making. समय बदलने के लिए समय नहीं लगता है. Today we are having everything. आज हम अगर करोड़पति है, tomorrow you can become the roadpati. Getting my point? We have done nothing to earn whatever we have got till now. It's all what our parents have done for us. And if we don't have a feeling of thankfulness for it, if we are taking this for granted, mind well, time will definitely answer back. It is answering currently. Already I gave this example, I mentioned these examples. I don't mind it repeating again. There are just 0.1% COVID patients of the total number of population in India. And to subside the needs of oxygen and ventilators for these 0.1% people, all authorities are on their heels. They are facing such bad times and there's scarcity, acute shortage of all these facilities required. तो वो व्यक्ति को ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस पता है जो आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर एक सांस को गिन रहा है. If you remove the cylinder, he will die of suffocation. But we are getting this oxygen free of cost now. That is why we are not having importance for it. We are not having thankfulness for it. We are taking it for granted. ये सब एग्जाम से कैसे रिलेटेड है? 2 सेंटेंस में बताता हूँ. आपको अगर आपके लाइफ के अंदर आपको मिलने वाली चीजों के प्रति आपके सद्भाव नहीं है, थैंकफुलनेस नहीं है, तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं है. आप किसी चीज का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, बिकॉज लाइफ इज लाइक ए मिरर, वर्ल्ड इज लाइक ए मिरर. जैसा आप करोगे वैसा आपको भरना है. एज यू सो शैल यू रीप. So if there is disrespect, if things have been taken for granted, the planet and the society will definitely take you for granted and no one will even ask you when you die. This needs to be realized. And this is beyond the exam holiday cycle. Is life worth only exams? Are medicos only worth exams? Definitely not. Definitely not. At least in the field in which we are studying, definitely life and education are far more beyond exams. Albert Einstein का उदाहरण है. He was let out of his school, sending a letter at his home कि तुम्हारे बच्चे की लायकी नहीं है कि वो हमारे स्कूल में सीखे. तो उसके माताजी ने वो पेपर उसको बताया नहीं था. After so many years of his mother's death, उसने जब वो अटैची खोली और उसमें उसको वो स्कूल का लेटर मिला, तो उसमें पढ़ा उसने क्या कि आपके बेटे की लायकी नहीं है कि आप स्कूल में पढ़े.
मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में पढ़े, ऐसी उसकी आईक्यू लेवल नहीं है, ऐसा उसके स्कूल के लेटर में लिखा हुआ था, और उसकी माताजी ने वो लेटर उसको नहीं बताया था। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन व्हेन ही वाज अ स्मॉल किड एंड व्हेन ही आस्क्ड हिज मदर कि व्हाट इज रिटन इन द लेटर, व्हाट हिज मदर रिप्लाइड, डू यू नो? हिज मदर सेड, बेटा, the school says that they don't have the standards that they can teach you. You are far more intelligent and they don't have the standards that they can teach you, so they have asked you to learn at home. You see how to handle the situation, how to take it positively. किसी बच्चे को आप बोल दो उसका आईक्यू बेकार है, तू घटिया है, तू कुछ काम करे, तू गधा है, उसको आप नेगेटिविटी बोलते हो तो उसके लाइफ पे बहुत बेकार इंपैक्ट पड़ता है, एंड वी लूज वन सच पॉसिबिलिटी इन द 125 बिलियन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन with the maximum youth. People are doing suicides, committing suicides, they are getting mental stress sitting at home, they are hunting for job opportunities. I really don't understand where they look for job opportunities. If you want to do something, definitely there are hundreds of options open. If they don't have, they can come to KYS business sideline में ढिगारा भर के आइडिया पड़े कि वो 2 टाइम की रोटी तो पक्का बना के खा सकता है. We need to explore the world. Out of the box, we need to think. This is what is the need of the hour. And definitely, life is beyond exams. Education in medical fraternity is definitely beyond exams. And you know what Einstein had replied when he saw that piece of paper after he became, after he turned to be elderly, जब वो बड़ा हो गया, उसने जब वो पत्र पढ़ा और उसने बोला, this single piece of paper, examination के पेपर को देख के, piece of paper cannot decide my life. Single piece of paper cannot decide my life. So we need to realize कि जो व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, जो व्यक्ति ने ह्यूमैनिटी के लिए इतने बड़े बड़े खोज किए, उसको डफर बोल के स्कूल में से निकाल दिया गया था. Probably he was out of this education system, and that is why he could do researches and discoveries and inventions. हम सब घोड़े की चाल चलते हैं ऐसा. एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पेपर में क्या है, just studying that. We need to change our perception. We need to change our view to see the things in our surrounding. We need to explore things beyond our limitations of our normal society जिसमें हम रह रहे हैं. तेरे को कितने मार्क्स मिले, मेरे को कितने मार्क्स मिले, तू पास हुआ क्या फेल हुआ, तेरे को डिस्टिंक्शन मिला या नहीं, what is this nonsense? In which world are we living? ये 12th standard का 10th standard का छोड़ दो. This is not going to work. You cannot mug up everything, and you cannot. It has to be application oriented. It has to solve the problems of someone. Then only it is viable. अरे खुद का काम, खुद का खर्चा पानी, माने खुद का जीवन. Animals also living. They also work for their food. They also sleep in a safe place. If we are doing the same just by taking big degrees, no use. Better to be an animal. And so it is my humble request to all of you again and again, please change your perception towards exam. Please change your perception towards holidays. Please change your perception towards life. Please know the purpose of exam. Please know the purpose of education. Please know the purpose of why you are here in the medical field. And overall, finally, I would like to request you to please know the purpose of life. And for this, your colleagues and friends who had attended the meeting a couple of days back have written beautiful answers, what they learned from the meeting and what they would kindle and imbibe in their life. And I request, there are some 12 or 13 PDFs. We have combined them all. After this meeting, after a couple of hours, I will put that on the group. And it's a humble request to all of you to go through those PDFs, what your friends and colleagues have written. This will be of great use to recognize your purpose of life. Definitely, it will reflect on your examination preparation, and definitely it will reflect in the form of better results that you would get. So thank you. This is what I wanted to discuss. It was about the purpose of exam, preparation of exam, and purpose of life as a whole. And please change your perception as of listening to this whole discussion now, because if you don't, definitely you will fall behind. You will be deficit of all these
good things in life. And this is my humble request again and again. Now I end up my discussion. In case of any questions, queries, you are free to ask. If anyone wants to ask any questions with respect to your exam preparation, with respect to your purpose of life, or anything of that kind, please let me know. Hello, sir. Yes, may I know who is this speaking? Sir, I am Rohan Linge. I want to ask that how many diagrams we have to draw in anatomy exam for 10 marks question? It is not about how many diagrams you should draw. जो आपको क्वेश्चन में सब पॉइंट्स पूछे हैं वो उसके पॉइंट्स कवर होने के लिए जो भी डायग्राम है आपने ड्रॉ करना चाहिए. 5 ही ड्रॉ करना चाहिए ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इतने मार्क्स के लिए इतने ड्रॉ करना चाहिए ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. लेकिन जब आप डायग्राम से उसको प्रेजेंट करते हो तो उसका इफेक्टिविटी प्रेजेंटेशन अच्छा होता है. एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया है, तो ही विल नॉट रीड योर थियरी, ही विल जस्ट सी द डायग्राम्स एंड गिव यू मार्क्स. कुछ कुछ ऐसे एलएक्यू है जिसके लिए ज्यादा डायग्राम्स नहीं है, जैसे आर्चेस ऑफ फुट 2-3 डायग्राम है, वीनस ड्रेनेज 3 डायग्राम है, वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब, तो इसमें ज्यादा डायग्राम है ही नहीं. तो आप क्या करोगे? ब्रेकियल प्लेक्सस है तो आप क्या ड्रॉ करोगे? तो 2-3 ही डायग्राम है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है. लेकिन आप आपके आंसर को कितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, दिस इज व्हाट रियली मैटर्स. और जिस क्वेश्चन में ज्यादा डायग्राम्स हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्वाइनल कैनाल लेते हैं, फीमोरल ट्रायंगल लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, 8-8, 10-10 डायग्राम्स है. और डायग्राम ऐसा नहीं है मैंने क्यूबाइटल फोसा ओपन किया तो उसमें आपको 3 या 4 ही डायग्राम मिलेंगे. आपको टेक्स्ट बुक में जहां कहां पे भी क्यूबाइटल फोसा से रिलेटेड डायग्राम मिलता है आपने वो एग्जाम में ड्रॉ करना चाहिए. ये एक्सपेक्टेड है. लॉजिकली सोचना चाहिए कौन सा डायग्राम किधर फिट होता है. ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स है, कॉमन डायग्राम्स है जो बहुत सारे आंसर्स में आप यूज कर सकते हैं. तो वो तो जब आप पढ़ाई करोगे तब आपको समझेगा कि कौन सा डायग्राम मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ. ये कोई 10th और 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम नहीं है कि ये क्वेश्चन के लिए बस इतना ही आंसर लिखना है. एवरीवन कैन फ्रेम देयर ओन आंसर, देयर आर नो आइडियल आंसर्स एज सच. लेकिन वो पॉइंट्स जो एक्सपेक्टेड है वो कवर होना चाहिए, और वो अगर हम डायग्राम के माध्यम से करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. आप थियरी लिखोगे, 6 पेज का आंसर लिखोगे, 8 पेज का आंसर लिखोगे, तो भी आपको पासिंग मार्क्स तो पक्का दे देगा अगर उसमें रेलेवेंट पॉइंट्स आपने लिख करके अंडरलाइन किए हैं तो. लेकिन आप डायग्राम लिखते हो तो एग्जामिनर का काम इजी हो जाता है. 200 पेपर जब वो चेक करता है तो वही आंसर पढ़ के वो बोर हो जाता है. तो जब आप उसको डायग्राम्स देते हो तो ही विल बी वेरी हैप्पी, और आपका भी टाइम बचेगा. डायग्राम ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. थियरी लिखने के अंदर डायग्राम, थियरी लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है. डायग्राम क्या, लाइन डायग्राम ड्रॉ करना इट्स वेरी इजी. तो पेपर लिखने के टाइम पे आपका भी टाइम बचेगा, आपका प्रेजेंटेशन भी इफेक्टिव होगा और आपको फायदा होगा. तो वो आपको ही खुद को बनाना है. डायग्राम्स है, ये है, कुछ डायग्राम्स आपको नेटर में से, एटलास में से लेना है, जिसकी वजह से आप एग्जामिनर को इजीली समझा सकते हो कि मेरे को क्या बोलना. उसके लिए रेफरेंस के लिए मैंने मेरे नोट्स आपके ग्रुप पे डाले हुए थे. टेलीग्राम पे आपका ग्रुप नहीं है, मैं आपको अभी ये वॉलंटियर वाले ग्रुप पे मेरे पीडीएफ शेयर करता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, नॉट फॉर आइडियल आंसर्स. अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? पूछो. अच्छा, अभी दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी मैंने आपका समाधान इस बारे में किया है कि आपके एग्जाम का आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. तो जो वॉलंटियर्स वॉलंटरीली उस ग्रुप पे है और खाली फुकट ऑडियंस बन के बैठे हुए, वो ग्रुप पे भीड़ कर रहे हैं, ना वो कुछ सीख रहे हैं, ना वो कुछ सीख करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ना वो कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और वो केवल रोज इतना सारे मैसेज आते हैं, तो अगर वो कोई काम में इन्वॉल्व नहीं है
तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये मैसेज किसके रिलेटेड है, किस बारे में है, और वो खाली फुकट उनका टाइम वेस्ट करेंगे सारे मैसेजेस पढ़ने में। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट उनको है कि वो या तो कुछ प्रोजेक्ट ज्वाइन करे, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आया तो पर्सनल चैट पे पूछे, ग्रुप पे पूछे, फोन लगा के पूछे, उनको कुछ क्वेरी है तो पूछे, और कुछ ना कुछ एक्टिवली करे, उनका भला करे, यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप नहीं करोगे तो केवाई का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। There are 9 billion people on this planet and we are very much hopeful that some or the other will definitely do. तो जिसको उसका फायदा करना है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करेगा आउट ऑफ द बॉक्स। ये घोड़े के जैसा भेड़ बकरियों की चाल जो आप सब लोग चल रहे हो कि सब लोग, when I asked why you are not replying on the group to some people, they told me sir no one is replying. अरे आपको दिमाग दिया है भगवान ने सोच के, अगर वो ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आप उसके आपका दिमाग यूज करके आप आंसर करो ना। आप ये क्यों देख रहे हो दूसरा क्या कर रहा है? अगर लाइफ में आप ऐसे जियोगे कि दूसरों के मतलब ओपिनियन पे अगर आपका लाइफ चल रहा है, समवन एल्स इज गवर्निंग योर लाइफ, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। वी आर लिविंग इवन वर्स एज दैट ऑफ एनिमल्स। हमको इंटेलेक्ट दिया है, राइट डायरेक्शन में विचार करना चाहिए। अच्छा, राइट डायरेक्शन में विचार करने के लिए ये शरीर का, ये ब्रेन का जो यूजर्स मैनुअल है वो पढ़ना पहले जरूरी है, तो वो आप पढ़ लीजिए और उस हिसाब से आप आंसर करिए। ऐसा मेरा भेड़ बकरियों की चाल में प्लीज मत रहिए। मॉब साइकोलॉजी में अगर आप फंस गए ना तो आप लाइफ में सीरियसली कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा मेरा 3.5 साल का अनुभव बोलता है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको लाइफ में अगर कुछ करना है तो प्लीज आप ये मॉब साइकोलॉजी के बाहर निकलिए, अपना अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए और अपना कल्याण करिए, ऐसी प्रार्थना है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज फास्ट आस्क फास्ट। Any more questions? See, this is my humble request. I am not pressurizing anyone. I am not demoralizing anyone. I am not degrading anyone's image. In case if anyone's ego is hurt, I am extremely sorry for it. But then this is the truth and ultimate truth of life. Okay, so do we have any more questions? I wait for a couple of. Yes, who is this? ज्योति सर। Yes, please ask. सर केवाई को लेके थोड़ा दिक्कत दुविधा था कि केवाई के मोटिव्स क्या है और इसका मतलब काम करने का तरीका क्या है, तो वो अगर क्लियर बताते तो। मोटिव से रिलेटेड एक 6 पेज का उपक्रम बोल के पीडीएफ ऑलरेडी हमने ग्रुप पे बहुत पहले डाला था, मैं वापस एक बार डाल देता हूँ। और उसके सारे ब्रांचेस का एनलिस्ट उसमें हमने किया हुआ है, कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है, किस व्हाट्सएप ग्रुप का क्या मोटिव है, सिंगल लाइन में उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर आपका मतलब कौन से ब्रांच में, देखो ब्रांच का नाम दे दिया, खाने में डिश दे दिया, ठीक है, 10 है, 10 डिश में से आपको कौन सा डिश कैसा टेस्ट करता है, उसका क्या स्वाद है, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको उसका एक घास खाना पड़ेगा। तो वो जो ब्रांचेस, वो जो ग्रुप के नाम उस पीडीएफ में डाले हुए हैं, आपको कोई ना कोई तो चूज करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको उसके बारे में मालूम पड़ेगा कि भाई ये ब्रांच में केवाई क्या काम कर रहा है, उनका क्या इंटेंशन है, उनका क्या एम और ऑब्जेक्टिव है। We as KY not being associated only with a single branch and working on number of branches and fields, it is not very easily possible to put everything under the same roof on a same page and concise it as a short note of 1 or 2 pages. जनरल आइडिया केवाई का क्या है, केवाई क्यों है, ये वो 6 पेज के पीडीएफ में फर्स्ट 3 पेजेस में हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, ताकि अगर किसी को इंग्लिश से प्रॉब्लम है, मतलब ये तो खाली मेडिकल फील्ड के लिए नहीं, सभी को ध्यान में रखे हुए उसको लिखा हुआ है। तो वो अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको मालूम पड़ेगा नहीं, और आपको मालूम अगर पड़ेगा नहीं तो आप कंफ्यूजन में, संभ्रम में रहेंगे, और अगर आप भ्रम में रहेंगे तो आप कोई एक ब्रांच चूज नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कोई ब्रांच चूज नहीं कर पाएंगे तो ना आप आपका कुछ कल्याण कर पाएंगे और ना कुछ आप केवाई में कंट्रीब्यूट करवाएंगे। तो आपको सिंपल मैंने एक एनालॉजी बताया कि खाने में आपके सामने 40 डिश है, 40 ग्रुप है, उसमें से आपको कौन सा करना है वो आप चूज करिए, पर्सनल टेक्स्ट मैसेज करिए, ग्रुप पे मैसेज करिए,
और उसके ऊपर आप पूछिए तो सही कि भाई ये क्या है, क्या करना है, क्यों कर रहे हो। एक सेकंड ना, मेरे को एक वीडियो कॉल आ रहा है।